বাংলাদেশে ইউনুসই নেতৃত্ব দিচ্ছেন হিন্দু শূন্য করার। ইউনুসের কারণেই স্বামী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জেল যাত্রা এবং তার আইনজীবী হাসপাতালে ভর্তি, সবকিছুর জন্য দায়ী ইউনুস। ইউনুস নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, ওনাকে কেন বাংলাদেশে পাঠানো হলো? পুরো হিন্দু সমাজ বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত। এর জবাব বাংলাদেশকে দিতে হবে, আর ইউনুসের আঁকা যিনি আঁকছেন তাকেও দিতে হবে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনুস সম্পর্কে মন্তব্য করছেন এক সাংসদ। ইতিমধ্যেই ইউনুসকে নিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ ছড়িয়েছে ভারতীয়দের মধ্যে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেও জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ ইস্যু। এই পরিস্থিতিতে একজন সাংসদের প্রতিবেশী দেশের সরকারের প্রধানকে নিয়ে করা এই মন্তব্য যেন আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। আমরা বলছি বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সমীক ভট্টাচার্যের কথা। তিনি সংসদ ভবনের বাইরে এই মন্তব্য করেছেন। কি বলছেন তিনি, শোনাবো আপনাদের। হিন্দুদের উপরে অত্যাচার চলেছে, ইউনুস নেতৃত্ব দিচ্ছে হিন্দু শূন্য করা। ইউনুসের কারণেই স্বামী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জেল যাত্রা, এবং তার কারণেই আজকে তার উকিলকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। এই সমস্ত কিছুর জন্য ইউনুস দায়ী। ইউনুস এসেছিলেন কেন? ওনার চিটফান্ড নিয়ে উনি খুশি ঠিক ছিলেন যতদিন দেশে ছিলেন, নোবেল প্রাইজও পেয়ে গিয়েছেন। তো এই সমস্ত নোবেল প্রাইজ মানুষকে আবার রপ্তানি করে বাংলাদেশে যারা পাঠিয়েছে, এবার তারা দেখুন পরিস্থিতিটা কি। পুরো হিন্দু ডায়াসপোরা আজকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত, এবং এর মূল্য বাংলাদেশকে দিতে হবে, ইউনুসকে দিতে হবে, আর ইউনুসের যে আঁকা আছে তাকেও দিতে হবে। শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকেই কিন্তু সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ আসছিল। অনেক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে হিন্দু সহ অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ আশা করেছিল যে পরিস্থিতি হয়তো একটু পাল্টাবে, কিন্তু তা তো হলো না, উল্টে অশান্তি আরও বাড়ল। যার উদাহরণ হচ্ছে হিন্দু অধিকার রক্ষার কথা বলে সনাতনী প্রতিবাদী সাধু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারি। এদিকে এরই মধ্যে বাংলাদেশও পাকিস্তানের মতো হিন্দু শূন্য হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সত্যেন্দ্র দাসের। কি বলছেন তিনি, শোনাবো আপনাদের। देखिए, वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बहुत गंभीर है और कितने मारे जा रहे हैं इसका भी कोई आकलन नहीं है। केवल एक दो घटनाएं हैं वही मालूम पड़ जाती हैं। अब वकील के ऊपर हमला हुआ तो मालूम पड़ा कि वकील जो बचाव में गए थे उनके ऊपर हमला हो गया और उनको ऐसा मारे हैं कि वो मरने वाले हैं। तो इसी तरह से वहाँ की घटना बहुत भयावह है और हिंदू कोई भी वहाँ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस देश में देश के लोग ही विरोधी हों, वहाँ की हालत ही बहुत गंभीर है। और इसी दिशा में उनके बचाव के लिए क्या किया जाए, ये तो हमारे भारत सरकार को ही सोचना पड़ेगा। और यदि भारत सरकार इस तरह से नहीं किया तो जैसे निर्मूल हो गए पाकिस्तान में हिंदू, वैसे बांग्लादेश में भी हो जाएंगे। इसलिए ये मांग सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर हस्तक्षेप करे और उनके बचाव के लिए कोई उपाय बतावे, और इस तरह से जो हिंदू को बचाया जा सके। और ऐसा नहीं किया गया तो वहाँ के हिंदू सब मार दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा एक एक करके। और जब वकील जो सहायक हैं, जो वकील हैं, जो छुड़ाने के लिए यदि पैरवी करते हैं तो उन्हीं को जब मारते हैं तो अब कोई छुड़ाने भी नहीं जाएगा, चाहे उन पर देशद्रोह का मुकदमा चल जाए और चाहे उनकी जहर हो जाए, चाहे हत्या हो जाए। तो इसलिए वहाँ की दृश्य जो बड़ी ही कठिन है, बहुत भयावह है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए स्वयं सरकार जब तक अक्सर कोई नहीं करती है और इसके विषय में, तब तक वहाँ के हिंदुओं को ऐसे मारते रहेंगे, निर्मूल हो जाएंगे हिंदू, वहाँ से खत्म हो जाएंगे हिंदू। और यही उद्देश्य है वहाँ के लोगों का जो कट्टरपंथी हैं। और स्थिति बहुत भयावह है हिंदुओं के लिए, और कैसे वो जीवित रहेंगे यह सोचने वाली बात है। इसको सरकार सोचे। রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রায় কি বলছেন, শোনাবো।
10 लाख लोगों की हत्याएं हुई। लोगों को अपने व्यापार घर समेटकर सीमाएं पार करके कष्ट सहते हुए भारत आना पड़ा और यहाँ वो शरणार्थी माने गए। धीरे धीरे सब यहाँ बस गए, व्यापार धंधा खड़े हो गए। हमारे देश में कष्टों को जल्दी भूल जाने की आदत है। भगवान पर भरोसा होने के कारण कष्ट जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन इतना समाज नहीं हुआ। पंजाब के मुस्लिमों ने बंगाल के मुस्लिमों पर अत्याचार किए और वो अत्याचार जब बढ़ते चले गए तो बंगाल वाले पाकिस्तान में विद्रोह हो गया। ये विद्रोह 1971 में हुआ। भारत ने बंगाल के समाज की रक्षा में सहायता की और पंजाब पाकिस्तान रह गया, बंगाल बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भारत ने सब प्रकार का सहयोग किया। शायद संस्कार बदलते नहीं। 1971 के बाद आज कितना साल हुआ है? तो मात्र 53 वर्ष हुए और 53 वर्ष में उस हिंदू समाज के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो टेलीविजन पर, सोशल मीडिया में, अखबारों में आ रहा है। कभी मैं बैठ जाता हूं टेलीविजन पर तो 2-4 मिनट में ही कह देता हूं इसको बंद करो, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। सारा समाज इसको देख रहा है, दुनिया भी देख रही होगी और इसलिए समाज अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए आज इकट्ठा हुआ है। आक्रोश। आखिर हम और कर भी क्या सकते हैं? अयोध्या में रहकर बंगाल के हिंदुओं की रक्षा के लिए इससे ज्यादा हम करें क्या? সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।